All the students of class 7 are welcome in this online classes provided by Growth Public School through YouTube or WhatsApp group. So, in the previous lesson, we have learned about the fundamentals of computers, operating system, the basic computers input output, the history of computer, that is generation of computer, and lots of things that we discussed in the previous video. So our today topic is computer network. Computer network. In this chapter, we will discuss a lots of things related to network. That means computer network. So let's let's start the chapter. Here you can see about computer network chapter number 2. What will you learn in this chapter? You will learn about computer network, basic concept about computer network, basic component of a network, the component that required to form a network, network types, yani ki types of network. There is a lots of type of network that you already learned in the previous class, that is LAN, WAN, MAN, etc. Again, type of transmission channel, that is there are two types of transmission channel are used to transmit the data from one to another. Network topology, we have already learned about network topology, that is a star topology, ring topology, etc. So let's start the first topic, that is about computer network. So what is computer network? Computer network is a system in which multiple computers are connected. Computer network, it is a such type of a network in which multiple computers are connected. यह किस तरह का नेटवर्क होता है? यह ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें क्या होता है, एक से ज्यादा कंप्यूटर क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं to each other, and they also interchange their data or information. As you see here, they share information and resources. In a network, a collection of computer and device connected together via communication device, that, that I already tell you that the computers are connected to each other by transmission channel to transmit their data, and also allowing computers to share resources. The purpose of network is routing, managing, and sorting rapidly changing data. These are the main purpose of the network. Okay, so a network contains user, all known as a client, running operating system like Windows 10, store their file on the server. देखिए जैसे यहाँ पे कह रहा है कि क्या होता है, एक नेटवर्क को चलाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक क्लाइंट जो कि कंप्यूटर पे इस्तेमाल करता है, जिसे हम लोग यूजर बोलते हैं. ठीक है, उसको चाहिए उसके कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज विंडोज 10, विंडोज 7, whatever the operating system that you already learned. Okay, so the required Windows operating system, he store their files on a server. It means that a server is required to store their file. The server computers has memory, of course. It store the data. It means it required memory, disk space, and more processing power connected to the client computer. It means that server is connected to a client computer, and the client computer can store their file, their information in the server. ओके, जैसा कि क्या मैंने बताया कि एक यूजर के पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए. उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फाइल स्टोर करता है, जो भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, वह क्या करता है, अपने फाइल को वो सर्वर में भेजता है. सर्वर के पास क्या होती है, मेमोरी होती है, उसके पास डिस्क स्पेस होते हैं, जिससे क्या करते हैं, वह डेटा को क्या करता है, स्टोर करके उसको प्रोसेसिंग के लिए भेजता है. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. Advantage of computer network. There is a lot of advantage of computer network that you see: easy communication speed,
share files, data and information, share hardware and security. These are the advantage of computer network. ये सारे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये कंप्यूटर नेटवर्क के क्या है, एडवांटेज है। तो आप देख सकते हैं, मैं बात करूं, नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज द बेसिक नीड टुडेज वर्ल्ड। आपको पता है कि आज टुडेज जनरेशन इज a digital world and everything, everyone wants to connect with the social media, everything want to connect with the internet, so they require basic computer network. There are many advantages of computer network. Some of them are given in the next page that you see in the next in below. Easy communication speed, जैसा कि मैंने कहा आपसे कि it is very easy to communicate through a network. ये बहुत आसानी होता है, एक नेटवर्क का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, किससे, विथ हाई स्पीड और यू कैन से फास्ट स्पीड। ओके, एंड आप जैसे कि आप मेल भेजते हो किसी को, सपोज आप किसी को मेल भेज रहे हैं, तो ये मेल जो है वन पर्सन टू अनदर पर्सन किसके थ्रू हो जा रहा है, थ्रू नेटवर्क। ईमेल्स आप करते हैं, ठीक है, आप टेलीफोन ही आप जैसे करते हैं, ये भी क्या है, एक नेटवर्क के द्वारा कनेक्टेड है। यहाँ तक कि आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलती है, चैट रूम्स चलते हैं, वो सारे क्या है, नेटवर्क से कनेक्ट है। तो इजी कम्युनिकेट एंड स्पीच होता है। शेयर फाइल, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, अगर मैं बात करूं कि नेटवर्क में आप शेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, क्या क्या शेयर कर सकते हैं, अपने योर ऑन फाइल, यू कैन शेयर योर ऑन फाइल, योर डेटा, योर इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आप शेयर कर सकते हैं। दिस इज बेनिफिशियल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन देयर डेटा in our organized manner and facilitate access to desired people. ये सारी चीजें क्या होती है, आप कर सकते हैं। शेयरिंग हार्डवेयर, अब if I talk about the sharing hardware, another important advantage of network is sharing hardware means what means, आप सपोज करिए कि एक प्रिंटर है और आप चाहते हैं कि पूरे नेटवर्क के द्वारा जो उससे 10 कंप्यूटर उसके साथ कनेक्ट हो, और वो 10 जब भी प्रिंट करना चाहे तो एक ही प्रिंटर से 10 कंप्यूटर कनेक्ट है और प्रिंट कर सकता है। तो दिस इज द शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर। इट मींस दैट दिस printer is connected to more than one computer. It means that it share hardware. Okay, this significantly reduces the cost of purchasing the hardware. Of course, if one printer is required for 10 computers, it means that it reduces the cost of purchasing hardware. Of course, अगर एक प्रिंटर से हम 10 कंप्यूटर कनेक्ट कर लेते हैं तो हमें 10 प्रिंटर की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ही प्रिंटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, 200 कंप्यूटर से प्रिंट करके काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज हमको बेनिफिट हो रहा है, क्या बेनिफिट हो रहा है कि आवर जो हम लोगों का हार्डवेयर जो परचेज का कॉस्ट है वो यहाँ पे रिड्यूस हो सकता है। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड इन एवरीवेयर। आपको सिक्योरिटी हर जगह चाहिए। आपको डेटा को क्या करना है, फाइल या डेटा को एक नेटवर्क के अंदर सेव करना है, तो वहां पे भी आपको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपके फाइल्स और हो सकता है आपके फाइल्स और डेटा कहीं क्या हो जाए, लीकेज ना हो जाए। तो इसके लिए आपको एक प्री नेटवर्क मॉडल की जरूरत पड़ती है, जिससे आप कह सके अपने फाइल और डेटा को सेफ रख सके। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं डिसएडवांटेज। अगर बात मैं करूं तो if a computer has a lot of advantage, but rather than it has also disadvantage too. तो डिसएडवांटेज की मैं बात करूं तो क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला आप देख सकते हैं, इफ ए नेटवर्क स्टॉप ऑपरेटिंग, अगर सपोज करिए आपने नेटवर्क में सारे डेटा को सेव कर दिया, ठीक है, और अचानक से कभी ऑपरेटिंग है नेटवर्क स्टॉप ऑपरेटिंग, नेटवर्क बंद हो गया, तो आपके डेटा जो है वहां से आपको जब चाहिए तब नहीं निकाल पाएंगे। आपको इंतजार करना पड़ेगा। कब तक इंतजार करना पड़ेगा, जब तक कि नेटवर्क क्या होता है, ऑपरेटिंग स्टार्ट नहीं करता। तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज हो गया। और दूसरा है, आप देख सकते हैं, दूसरा है इफ ए सर्वर डेवलप a fault when user may not be able to run the application program and chances of data loss and more. Of course, अगर क्या हो जाए, अगर आपके नेटवर्क में कोई फॉल्ट आ जाए, अब मान लीजिए मैं बात करूं नेटवर्क की, अगर आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आई है, ठीक है, अगर तार में अचानक बीच में कोई फॉल्ट आ जाता है तो आपके घर की तो बत्ती गुल। तो इससे क्या होता है कि अगर आप इस तरह में, अगर नेटवर्क भी उसी तरह से काम करता है, अगर नेटवर्क में कोई फॉल्ट आ जाए
तो आपका जो एप्लीकेशन रन कर रहा है उसमें डेटा लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। और अगला बात करूं 3 नंबर, इट बिकम डिफिकल्ट टू मैनेज if the number of computer on a network increase. It means that if the number of computer increase, it is very difficult to manage the network. यानी कि अगर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की संख्या बढ़ जाती है, उस सिचुएशन में क्या होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इसका ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है। As traffic is increased on a network, the performance degrades unless it designed properly. It means that जैसे कि देखते हैं, जहाँ अगर अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, रोड में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाने से क्या होता है, आप लेट हो जाते हैं। उसी प्रकार से नेटवर्क में कंजंक्शन हो सकता है। नेटवर्क में क्या हो सकता है, कभी कभी नेटवर्क में बहुत सारे परफॉर्मेंस एक साथ होते हैं, तो उस समय क्या होता है, नेटवर्क में जो है ट्रैफिक इंक्रीज हो सकता है, और इससे हो सकता है, क्या हो सकता है, इससे आपके डेटा को जो आप सर्च कर रहे हैं, जो डेटा को आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको जो है टाइम लग सकता है। तो यह भी एक इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। अगर मैं बात करूं बेसिक, जैसे कि सेकंड, ये हमारा सेकंड टॉपिक है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए नेटवर्क। एक नेटवर्क का बेसिक कंपोनेंट क्या क्या होता है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, सर्वर एक, अगर आपको एक नेटवर्क बनाना है तो एक आपको सर्वर रखना पड़ेगा। सर्वर क्या करता है, सर्वर क्लाइंट के द्वारा भेजा हुआ डेटा को सेव करके रखता है, तो इट्स रिक्वायर्ड अ सर्वर। सर्वर एक चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपको वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन की बात करें तो जिस वर्क स्टेशन इज अ कंप्यूटर needed for individual user or use in a networking environment. It like a personal computer except all this connected to other computer as well as to main computer that is सर्वर। यानी कि सर्वर अगर मैं यहाँ पे बना दूं तो इस सर्वर के साथ जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, दिस ऑल प्रोसेस और दिस ऑल थिंग्स combined together is called वर्क स्टेशन। ओके, तो ये हो गया हम लोग का वर्क स्टेशन। नेटवर्क इंटरफेस का मैं एक यहाँ पे जो आप राइट साइड में देख रहे हैं एक पिक्चर, ये है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्यों रिक्वायर पड़ता है, अगर आपको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होना है तो आपको चाहिए इंटरनेट, और इंटरनेट के लिए यह नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपके सीपीयू में लगाना जरूरी होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, नेटवर्क इज नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर विदाउट विच ए कंप्यूटर कांट बी कनेक्टेड ओवर ए नेटवर्क। इसके बिना आप कभी क्या हो सकता है, कंप्यूटर के नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क एडाप्टर और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसको हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा हम लोग का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं हब। हब की बात करें तो ये आप देखे भी होंगे बहुत सारा, अगर एक यहाँ पे एक यूएसबी में आपके एक यूएसबी से आप 4 यूएसबी को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का हब, इसको हम लोग हब कहते हैं। इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो हब इज अ डिवाइस दैट प्रोवाइड सेंट्रल पॉइंट फॉर केबल इन अ नेटवर्क। ये सेंट्रल पॉइंट के तरह काम करता है। सेंट्रल पॉइंट की तरह क्यों काम करता है, क्योंकि कंप्यूटर के एक यूएसबी से आप चार डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग हब बोलते हैं, ठीक है। इंटरनेट, इंटरनेट से आप वाकिफ है, बहुत दिनों से आपको पता है, बता भी रहा हूँ। इंटरनेट इज द बिगेस्ट नेटवर्क। इंटरनेट क्या है, सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है। इंटरनेट इज द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर कनेक्टिंग बिलियंस ऑफ नेटवर्क टुगेदर अक्रॉस द ग्लोब। मतलब बिलियंस ऑफ कंप्यूटर आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट से क्या है, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इट कनेक्ट्स थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड, यानी कि वर्ल्ड वाइड जो है बहुत सारे कंप्यूटर्स क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। इट प्रोवाइड मेनी यूजफुल सर्विस सच एज वर्ल्ड वाइड वेब। यह क्या प्रोवाइड करता है हमें, www वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल एंड सो ऑन, और बहुत सारी चीजें हमें जो है इंटरनेट के माध्यम से मिलते हैं। बात करूं, अगर मैंने ट्रांसमिशन के बारे में बात किया था, शुरू में ही मैंने कहा था कि ट्रांसमिशन दो प्रकार से हो सकते हैं, एक वायर और एक वायरलेस। देखिए हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आई है वो वायर के थ्रू आई है। अब इलेक्ट्रिसिटी तो वायरलेस अभी तक नहीं हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनरेशन है। इट मे बी पॉसिबल आफ्टर सम टाइम, इट मे कम इन वायरलेस mode, but today we will discuss about two mode of communication. This is two mode of communication, or you can say two mode of transmission, that is wired or wireless.
जो वायर ट्रांसमिशन होता है उसमें क्या होता है, वायर की जरूरत पड़ती है। आप वायर में देख सकते हैं ये कोएक्सियल केबल, एक होता है कोएक्सियल केबल, केबल कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग ऑफ a metal tube enclosing with a isolated from the central प्रोडक्शन कोर मीन्स, इट मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है कोएक्सियल केबल में आपको इस तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे। एक सेंट्रल केबल होगा जो मेटल का बना होगा, फिर उसके बाद से एक इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर मतलब होता है इसके अंदर आपको जो है इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या इंसुलेटर। फिर उसके बाद से एक और आपको मेटल प्लेट मिलते हैं। इस प्रकार के जो चैनल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कितने लेयर हो गए, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, 3 लेयर इसमें हो जाते हैं। तो इसे हम लोग वायर्ड कनेक्शन बोलते हैं, जिसमें 3 लेयर होते हैं। ठीक है, अगला मैं बात कर लूँ, अगर वायरलेस ट्रांसमिशन चैनल की बात करूँ तो आप लोग देखते होंगे रिमोट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, जैसे आप जो कंप्यूटर का रिमोट इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई वायर की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है, वो क्या है, एक वायरलेस है। ब्लूटूथ से आप डेटा ट्रांसमिशन करते हैं, वो भी एक वायरलेस है। सेल फोन, आप एक जगह से दूसरी जगह बात कर रहे हैं विदाउट एनी चैनल और विदाउट एनी वायर, दिस इज वायरलेस। वायरलेस नेटवर्किंग, वायरलेस कंप्यूटर, सैटेलाइट टेलीविजन और रेडियो वेब्स, ये सारे क्या है, ये हमारे वायरलेस मोड ऑफ कम्युनिकेशन और वायरलेस मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। यहाँ पे डू यू नो में आप देख सकते हैं वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, इज अ वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी दैट इनेबल लैपटॉप्स, पीसी एंड अदर डिवाइस टू कनेक्ट इजिली टू इंटरनेट। जैसे कि अभी मेरा लैपटॉप क्या है, वायरलेस कनेक्टिविटी है ना, वायरलेस इंटरनेट से कनेक्ट है, यानी ऊपर एक मोडेम है, उससे क्या है, यह कनेक्ट है। तो ये हो गया इस तरह के वायरलेस फिडेलिटी के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो है यह सेशन अच्छा लगा होगा, और आप जरूर इसे देखिए। इसके साथ पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और उसे देखिए, और इसके साथ क्वेश्चन भी मिलेंगे, उस क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है।